we should begin it. Perfect. Okay. So अभी तक हमने जितना था हमने बेसिक पाइथन डील कर लिया हमने. We have dealt with arrays, we have dealt with functions, input output statement, conditional loops, iteratives. Enough. हमने इतना कर लिया. Now let's step up a bit and actually do things जिससे हम actually projects या ये सब हम जहाँ इसको use करेंगे. So the very first thing which we would be doing today is this 2D list. बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, but I would be able to tell you a code. We'll print some patterns to help you actually understand कि हम क्या कर सकते हैं. बाकी जो list के साथ हम कर सकते हैं, we can do it with 2D list also. Then we'll head over to learn NumPy, which is by far the most used library module in Python. So let's begin with today's agenda, what we would be covering today. We'll start with defining 2D list and we'll do some operations. We'll actually formally define what this row major and column major representation are, and we'll work with NumPy. Okay? So let me first give you a brief description of this 2D list, what this 2D list is. अभी तक हमने 1D list पढ़ा, right? So 1D list was what? A simple array in which you store the data in continuous memory, right? Correct? Yes or no? Make sense? Yes. हाँ. So what this 2D list is, it पहली बात तो क्योंकि ये list है तो obviously it would be a list. अब जहाँ हम लोग 1D list में एलिमेंट स्टोर कर रहे थे, some integer, some string, some character, some boolean value, we would be storing some sort of list here, and this list would be a one dimensional list. So what I essentially mean is कि we have a list, उस लिस्ट के अंदर हम वापस से लिस्ट स्टोर करेंगे और वो लिस्ट 1D होगा. मेक सेंस? मेक सेंस? थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला? एक लिस्ट होगा, उस लिस्ट में हम एक और लिस्ट स्टोर करेंगे. जैसे एक बाल्टी है, उस बाल्टी में मैं एक और बाल्टी स्टोर कर सकता हूँ, छोटा बाल्टी. राइट? मेक सेंस? So this is what 2D list is. अभी I'll get into the mathematics and all. पहले मुझे थोड़ा define कर लें दो. Then, for example, how do we actually represent a 2D list? Right? To represent a 2D list, first let's say A is the list name. Then we use the square brackets to actually tell us what is the number of row and what is the number of column. Let's say I have n and m, where n by m is a table. See, this is a table n where you have n rows. The first bracket is for rows, n rows and n columns. So if you start with 0 based indexing, you would have n minus 1 rows. If you start with 0 based indexing, you would be having m minus 1 columns. Make sense? Clear हुआ? इतना सिंपल चीज एक्चुअली है क्या? दिस इज जस्ट अ टेबल, or if you want to visualize it, it is just a plane in which you have few cells and columns, जैसे spreadsheet होता है. ठीक है? So this whole thing is a list here, this whole thing is a list here, this whole thing is a list, this whole thing is a list. So for n rows you would be having from 0 to n minus 1 rows. From m columns you would be having from 0 to m minus 1 column. मेक सेंस? अगर हमको कोई एक वैल्यू इसमें से एक्सेस करना है, तो जैसा हमने लिस्ट में सीखा था कि सबसे पहले हम एक उस घर में जाएंगे. लेट्स से हमको ये ब्लॉक एक्सेस करना है. हाउ डू वी एक्सेस इट? पहले हम उस घर में गए, राइट? So if we are not using some convention here, we can simply say go for this row and this column, go for this row and this column. This is a naive based approach. We would be using two different brackets for that, but for this for the pseudocode itself, let us think कि okay, first go to the second row. So from 0 you have went to second row, and let's head back to the second column. Yep, now you are there. So that is how you go to some sort of a value over 2D list. Let me actually so I guess इतना part clear होना चाहिए by definition. Is it? कि ठीक है, एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट के अंदर
we will store some 1D list, right? And the index goes from 0 to n minus 1 for n rows. It would go from 0 to m minus 1 for m columns. And let's say if we have something as a 5 comma 7, so you would be having 5 rows, you would be having 7 columns. So in total you would be able to store 5 into 7, yani ki n m or m, whatever you can say, n into m elements, m into n elements. Make sense? Like for a list of 5 rows and 7 columns, you can store 35 elements maximum. उससे ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं. मेक सेंस? एकदम बेसिक कैलकुलेशन है यार. You can use permutation and combination to get this thing, और सिंपल 5 रो है, 7 बार ऐड कर दिए, 5 into 7. I guess this was clear. Let's head over to not this thing. We'll do this thing first. Let me actually head back to. Okay, perfect. Let me tell you about row based and column based representation. For that, हाँ शशांक बोलो. संजय, ऊपर तुमने ए ब्रैकेट में एन ब्रैकेट में एम लिखा हुआ है और नीचे जो एग्जांपल है ए ब्रैकेट में 5,7 दोनों मैंने क्या सेम बोला? चीज रिप्रेजेंट कर रहा है. मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज स्पेसिफिक, मैं अभी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ. मैं एक टू डी लिस्ट का कंसेप्ट तुम और भी लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हो, नॉट ओनली हाँ. पाइथन. मैंने एक अप्रोच बताया हाउ वी कैन डू इट. दिस इज अ स्यूडो कोडिक अप्रोच. हम एक्चुअल कोड नहीं लिखे, कोड हम एक्चुअली लिखेंगे तब हम समझेंगे हाउ डू यू एक्सेस इट. ओके मैंने बोला कि ओके. सबसे पहले यू वेंट टू द रो, पहले रो पे जाओ, उस रो पे आ जाओ, देन यू ट्रैवर्स टू द कॉलम. इसलिए मैंने ये वाला हाँ. अप्रोच. ठीक है. ओके, सो let me uh, actually share my, just a second. Fine, perfect. I guess, is it clear? Clear है? ठीक है. See what do I mean by to-do list. So अभी तक हमने देखा कि we can have a list like this. We can store 1 2 3 4 something like this. So this is your essentially one dimensional list, right? अब मैंने by definition बोला if I want to have a 2D list, so we would have a list, and in this list we would store some one dimensional list. So we can have like 1 comma 2 comma 3 4 comma 5 comma 6. So this is your one dimensional list, this is your one dimensional list. So within a list you are storing some one dimensional list. So this is what 2D list is. ठीक है? Clear? So if I want to represent this same list in some matrix format, 1 2 3 4 5 6. So this is your rows, right? These are your rows. So this is row 0, this is row 1, this is column 0, this is column 1, this is column 2, right? ठीक है? Clear? ठीक है, perfect. तो मैंने बोला कि let's I want to access this element. तो ठीक है, अगर ये list L है, if let's, ठीक है, L2D लेते हैं, तो I can first, मैं जाऊंगा उस घर में उस रो में जाऊंगा पहले. तो this is corresponding to row 0, and then I would like to go to this particular column, right? So this is how you access it. Clear? Perfect. Now let's learn about a very important thing, कि जब मैंने ऐसे बताया यहाँ पे we are storing it we are storing 2D list in a form of table or matrix, right? तो क्या कंप्यूटर मेमोरी में ये 2D लिस्ट की तरह स्टोर होगा? क्या कंप्यूटर मेमोरी में ये एज अ 2D लिस्ट स्टोर होगा? यस या नो? No. नहीं होगा, बिकॉज कंप्यूटर में यू कैनॉट, इन कंप्यूटर मेमोरी यू कैनॉट स्टोर समथिंग इन 2 dimensions or 3 dimensions. So let's learn the representation. So see what happens. So let's say we have this
table, right? You have this 2D list, right? We can have some rows, we can have some columns, right? Now, if I want to store this in memory, this has to be stored in some kind of like in array structure, like in one dimension. You have to store it into one dimension, linear. You have to store it, have to store it linearly. What do I mean by linearly? You have to store it in one dimension. So now the question comes कि भैया आपने यहाँ पे तो मेरे को लिस्ट दे दिया, अब how I would be able to convert this whole things into a this single linear storage structure? अब ये कैसे होगा? So let's इसी को डील करते हुए let's learn this very important concept which is known as row measure versus column measure representation. Okay, so let's do what? Let's build a matrix here. Let's build a matrix here. Let me make a table here first. Okay, so this is your column number 0, column number 1, column number 2. This is your row number 0, row number 1, row number 2. Let's have some values here. ठीक है, कुछ values रखते हैं. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right? This is my matrix. Let me delete this thing. Okay, let me delete this. Now comes कि इस पूरे टेबल को I have to decompose it into a linear format. So the first method is what you can think is कि भैया पहले आप एक काम करो, इतना एरिया उठाओ, इसको यहाँ रख दो, फिर दूसरा ये उठाओ, इसको इसके आगे लगा दो, ये एरिया उठाओ, इसके आगे लगा दो. कैन वी डू इट लाइक दिस? कि पहले ये उठाया, इसको यहाँ रख दिया, इसको उठाया, इसको यहाँ रख दिया, इसको उठाया, इसको यहाँ रख दिया. एक तरीका तो ये है. If you are doing it like this, this is known as row measure. This is known as row measure because we are giving the priority to the row. So if I decompose it, how would it be like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is your row measure representation. एक तरीका और बोल सकते हो, यहाँ पे. Let me erase this thing. Okay, I guess इतना काफी है. Okay. एक तरीका और बोल सकते हो यहाँ पे मेरे से कि भैया आपने जो रो वाइज उठाया, why can't we do it like in a column? कि हमने पहले ये कॉलम उठाया, इसको यहाँ रख दिया, ये कॉलम उठाया, इसको इसके बाद में रख दिया, ये कॉलम उठाया, इसको इसके बाद में रख दिया. कैन वी डू इट लाइक दिस? लाइक पहला कॉलम उठाया, पहले को मैंने यहाँ पुट किया, दूसरा कॉलम उठाया, उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, थर्ड कॉलम उठाया, उसको यहाँ पुट कर दिया. कैन वी डू इट लाइक दिस? ऐसे कर सकते हैं? एकदम ध्यान दिमाग से सोचो. पहला कॉलम उठाया, उसको यहाँ पुट कर दिया. सो इफ वी गो बाय दिस थिंग, so column measure forbid my writing. I can have 1, 4, 7. पहला कॉलम, दूसरा कॉलम 2, 5, 8. Just a second. Just a second. Perfect. फिर लास्ट कॉलम है, वो कॉलम मैं ऐड कर दूंगा 3, 6, 9. Can we do it like this? Make sense? If it makes sense, give me a thumbs up.
ओके, लेट मी कंक्लूड। मैंने क्या बोला कि ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है, आई हैव, अच्छा इसका डायमेंशन क्या होगा इस टेबल का? 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स है, 3 3 क्रॉस cos 3 3 3 क्रॉस 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो सकता है इसमें? 3 into 3 9 एलिमेंट्स। 9 परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो मैंने क्या बोला कि इफ आई वांट टू डिकम्पोज दिस 2D मैट्रिक्स इनटू अ लीनियर स्ट्रक्चर, मैं या तो पहले रो उठा के स्टैक कर सकता हूँ। आई कैन टेक द फर्स्ट रो, आई कैन स्टैक इट हेयर, आई कैन टेक द सेकंड रो, आई कैन स्टैक इट हेयर, आई कैन टेक द थर्ड रो, आई कैन स्टैक इट हेयर। या फिर हमको ऐसे नहीं करना है, हमको कॉलम वाइज करना है। ठीक है, चलो पहला कॉलम उठाए, पहले को स्टैक कर दिए, दूसरा कॉलम उठाया मैंने, दूसरे को यहाँ स्टैक कर दिया, थर्ड कॉलम उठाया, थर्ड को मैंने स्टैक कर दिया। मेक सेंस? मेक सेंस? परफेक्ट। So let's get to your terminal, sorry, your IDE. Kindly open your IDE, guys. We'll now learn how to. Just a second. Okay, perfect. Clear है सबको मेरा IDE? Is it clear? आदि visible है? हाँ विजिबल है, थोड़ा सा जूम कर देना बस। हाँ बस कर दे रहा हूँ, बस एक सेकेंड। ओके परफेक्ट। देखो, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। आई गेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। So let's learn how to actually do it in your Python. Let's say I have this L2D. So one way is you can simply say कि 1 comma 2 comma, you can simply denote it here within braces, within brackets, and let's say if you want to print this thing, you see, you get this list. Aya, if I want to access it, I can access it. See, for index 0 I get this list, for index 1 I'll get this list, because ultimately ये जो list है, this is itself an element. अब if I want to get to some, say इसके अंदर I want to access, if within this list I want to access the first element, तो मैंने जैसे बताया था, पहले घर में जाओ, फिर उस फ्लोर में जाओ, फिर उस कमरे में जाओ। तो ठीक है, पहले हम घर में गए, घर इज दिस L2D, फिर उस फ्लोर पे गए, फ्लोर है मेरा फर्स्ट फ्लोर, फिर हम फर्स्ट रूम में चले गए। तो दिस इज हाउ यू एक्सेस इट। क्लियर है इतना? क्लियर है? क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप। परफेक्ट। सो दिस इज, अब तुम जो लिस्ट में जितना ऑपरेशन सीखे थे, यू कैन एक्चुअली परफॉर्म एवरीथिंग विद दिस 2D लिस्ट। ऑल यू हैव टू डू इज, तुमको वैल्यूज एक्सट्रैक्ट एक्सेस करना है, एंड देन यू कैन डू थिंग्स ऑन इट, जितना मैंने लिस्ट में सिखाया था, जितना लिस्ट मेथड्स है, ऑल वर्क हियर। सो लेट्स डू व्हाट, लेट्स एक्चुअली, लेट मी हेल्प यू आउट विद वन थिंग, कि अब हम देखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे ले, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यू कैन यूज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन ऑल्सो, वो तुम्हारा होमवर्क होगा टू गेट थिंग्स, कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से हाउ यू आर गेटिंग वैल्यूज, हाउ यू एबल टू क्रिएट लिस्ट। बट टिल देन लेट मी एक्चुअली हेल्प यू आउट विद दिस। ये क्लियर है सबको? दिख रहा है? सो एज यूजुअल, फर्स्ट डू व्हाट, फर्स्ट एक्चुअली टेक कि यूजर से कि उसको कितना नंबर ऑफ रोज और कितना नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए फॉर अ 2D लिस्ट। उसको डायमेंशन चाहिए होगा ना पहले हमें, जब हम लिस्ट बना रहे हैं 2D लिस्ट, तो ऑब्वियसली वी वुड नीड सम डायमेंशंस, राइट? So let's take some, I would like to do it with the list only. तुम अपने से अलग अलग वैल्यू ले सकते हो यूजर से, कि फर्स्ट यू टेक द रोज, फर्स्ट यू टेक द कॉलम, बट ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको लेवल अप करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट आई सेड कि ठीक है यूजर,
Do what? Give me an input. Enter the number of rows and columns. So I would get this as a string. So first I'll strip it down, then I'll split it out with spaces. So for this I would get, see what happens. If I run this thing, let's see, I want to have a 2D list of 2 rows and 3 columns. Now I get this. अब हमको पता है इसमें से ये जो फर्स्ट वैल्यू है, दिस इज माय नंबर ऑफ रोज एंड दिस सेकंड वैल्यू इज माय नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट? राइट, यस या नो? और बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि ये स्ट्रिंग में है. आई डोंट वांट स्ट्रिंग, आई वांट इट एज एन इंटीजर. सो ठीक है, इफ आई से इफ लेट अस अज्यूम कि n रोज है, तो व्हाट आई वांट इज कि भैया आप एक काम करो, आप स्ट्रिंग का जो पहला वैल्यू है उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करके, एंड आई वुड लाइक टू स्टोर दिस एज अ नंबर ऑफ रोज. सो व्हाट वी आर डूइंग, इस लिस्ट का जो पहला वैल्यू था, दिस इज योर नंबर ऑफ रोज, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. यू कैन डू इट फॉर कॉलम्स. इस लिस्ट का यू सी जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है, दैट इज योर essentially number of columns. So this is what my number of columns, right? So if I print n dash, let's do this, let's say 2,3. You see, now you have a tuple in which you would you're having an integer 2 that denotes your number of rows, and you're having an integer 3 that represents your number of columns. Make sense? Make sense? अब जैसे यहाँ देखो, let me build an approach for you कि I have said कि let's have a list in which, see list बन कैसे रहा है. पहले you are declaring an empty list. देखो कैसे हो रहा है. First you are declaring an empty list. अब इस list के अंदर what you are doing is you are again declaring an empty list, and in that list you are filling up some values. See, पहले एक लिस्ट बनाया मैंने बाहर में, उस एम्प्टी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाया मैंने, फिर उस लिस्ट के अंदर वी आर एक्चुअली पुटिंग आउट द वैल्यूज. वंस अगेन, फर्स्ट वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डिक्लेयरिंग एन एम्प्टी लिस्ट, देन वी आर हैविंग सम वैल्यूज हियर 5, 6, 7. ठीक है, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? सो इन ऑर्डर टू डिक्लेयर अ 2D लिस्ट, फर्स्ट स्टेप इज एक आउटर लिस्ट को हम इनिशियलाइज करें जो एम्प्टी हो. दैट इज स्टेप 1. स्टेप 2, within that outer list declare as many list जितना number of rows होगा. यहाँ पे देखो number of rows is 2, तो ठीक है, मैंने number of कितने list हुए? 2 list हुए. 3 होगा तो 3 list होगा. that is purely upon you. तो one thing is clear कि जितने number of rows हैं उतने number of यहाँ पे list बनेंगे. right? make sense? देखो मैं जो स्टेप अभी बता रहा हूं, आई वुड नॉट राइट इट इन अ सूडो कोड, वी विल डायरेक्टली कोड इट आउट. ठीक है, बिकॉज आज मेरे को थोड़ा ज्यादा टॉपिक कवर करना है, तो आई वुड बी थोड़ा सा स्पीड में, अदरवाइज सेशन कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा. बट ठीक है, देखो हमने क्या किया. सबसे पहले हमने एक आउटर लिस्ट लिया. ठीक है, उस आउटर लिस्ट में हमको जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ हमने एम्प्टी लिस्ट बनाए. अब एक एक करके हम वैल्यूज में फीड करते जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. दिस इज हाउ वी डूइंग. पहले हम बाहर का लिस्ट बनाए, फिर इंडिविजुअली नंबर ऑफ जितने रोज थे उतने एम्प्टी लिस्ट बनाए, फिर एक एक करके पहले लिस्ट पे आइटरेट किए, उसमें वैल्यू पुट किए, फिर सेकंड लिस्ट पे गए, उधर वैल्यू पुट किए, थर्ड लिस्ट में गए, उधर वैल्यू पुट किए. तो एसेंशियली हमने स्टार्ट कैसे किया? हमने स्टार्ट किया कुछ नंबर्स से यहाँ पे, राइट? लेट्स हैव दिस नंबर यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. मैंने जैसा सिखाया था. व्हाट आई वांट टू डू इज for I in range, let's say we wanna do it for whatever जितना जो यूजर कह रहा है. ठीक है, सो नहीं, जितना इनपुट यूजर कह रहा है we'll do it for that. So we would say कि जितना यूजर ने मेरे को इनपुट दिया है, what we'll do, we'll first strip it out because we don't want any leading or trailing white spaces. We'll split it out for white spaces. So what we are doing is we are taking input from the user कि ठीक है भैया तुमने मेरे को dimensions दे दी, now actually go out and
गिव मी द वैल्यूज जो उस लिस्ट में होंगी, ठीक है। एंड व्हाट आई वांट, क्योंकि एसेंशियली ये एक स्ट्रिंग में स्टोर कर, वंशिका जस्ट अ सेकंड आई विल गिव यू द टाइम। अब ये जो वैल्यूज हमने देखा बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग में हो रहा है स्टोर, एंड आई डोंट वांट दैट, आई वांट इट टू बी एन इंटीजर। तो ठीक है, आई सिंपली से पुट दिस वैल्यू इन द स्ट्रिंग अ लिस्ट। मेक सेंस? मैंने क्या किया कि यूजर से इनपुट लिया, अब क्योंकि वो स्ट्रिंग में होगा, आई डोंट वांट स्ट्रिंग, आई वांट इट इन एन इंटीजर, तो मैंने इंटीजर में इसको कन्वर्ट करके इस लिस्ट में स्टोर कर दिया। क्लियर है? हाँ वंशिका, क्या दिक्कत है? अरे बस वही, उसमें आपने आई फॉर आई इन इनपुट नहीं लिखा था ना, तो बस वही। ठीक है, so if I run this thing, let's see what happens. Let me print it out. So first से कि मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है, let's have some dimensions and let's put some values, 1 space 2 3 4 5 6. So you have a list which is storing numbers as an integer, correct? आया सबका? आया सबका? अगर आया तो give me a thumbs up or drop a yes in the chat. Perfect. Okay, आ गया सबका। But if I want to convert a 2D list out of this 1D list, can we do it? Obviously, we can do it. तो मैंने पहले क्या बताया, फर्स्ट वील डिक्लेयर एन आउटर लिस्ट, राइट। मैंने क्या बोला कि ठीक है भैया, आप एक काम कीजिए, आप एक आउटर लिस्ट डिक्लेयर कर दीजिए जो एक एम्प्टी लिस्ट होगा। पहला स्टेप डन, स्टेप वन डन, यस या नो? कि भैया आपने पहले बोला था कि आपने सबसे पहले आप बाहर का लिस्ट चाहते हैं, ठीक है, हम बाहर का लिस्ट ले लिए। सो लेट्स डू व्हाट, कि we would convert this value into a 2D list. Let's see how it is done. Step 1 we have completed. Now what I said कि जितने रोज होंगे उतने एम्प्टी लिस्ट उस लिस्ट के अंदर बना दो, मैंने ये कहा था ड्रॉप अ यस, परफेक्ट। तो ठीक है भैया, आप एक काम कीजिए, जितने रो थे आप कीजिए क्या कि उतने एम्प्टी लिस्ट बना दीजिए। तो ये एम्प्टी लिस्ट कहाँ बनेंगे, इसमें बनेंगे, राइट। जो बाहर का लिस्ट था उसी के अंदर हम एम्प्टी लिस्ट बना रहे थे ना। जो स्टेप मैंने बताया था वो बस यहाँ रिकॉल करो। स्टेप 1 था कि भैया आप एक बाहर का लिस्ट बनाइए, दैट इज डन हेयर, एक बाहर का एम्प्टी लिस्ट बन गया। अब मैंने बोला था सेकंड स्टेप कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने यहाँ पे आप एम्प्टी लिस्ट बनाते जाइए, ठीक है। तो लेट्स डू इट, यहाँ पे नहीं, लेट्स यूज सम बढ़िया वाला तरीका। व्हाट आई सेड एसेंशियली इज कि ठीक है, जितने रोज हैं डू व्हाट, यू सिंपली out dot append, and what we gonna put here, we gonna put this. So let's run this thing. पहले मैं तुम लोग को एक एक स्टेप बता दूं कैसे हो रहा है। Let's print out 2, 3 1 2 3 4 5 6। सी, क्योंकि दो रोज थे तो दो एम्प्टी लिस्ट बन के रेडी है यहाँ पे। क्लियर? गिव मी अ यस या नो। प्रथम, शशांक, राशि, सिर्फ वंशिका ही रिस्पॉन्ड करिए, क्यों ऐसा? शशांक नहीं समझ में आया? नहीं थोड़ा डाउट हुआ। अच्छा, जस्ट अ सेकंड को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अगर तुमको भैया मेरा हाँ राशि बोलो। भैया मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आई कि जैसे यहाँ पे एन और एम में हमने यूजर इनपुट लिया, ठीक है, एक नंबर ऑफ रोज था और एक नंबर ऑफ कॉलम्स था, हाँ। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर ऑफ रोज वो लेगा और वो कौन सा नंबर ऑफ कॉलम्स लेगा? तो उसके लिए हमें हैशटैग नंबर ऑफ रोज और हैशटैग नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना जरूरी है? ये मैं तुम्हें बताने के लिए कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रोज पहले लिखो, कॉलम पहले लिखो। तुम उसको चेंज कर दो, दैट इज प्योरली अपॉन यू। तुम चाहती हो कि नहीं 2 कॉलम और 3 रोज का बने, यू कैन डू इट। ओके, सी, मैं तुमको अप्रोच बता रहा हूँ, बिकॉज अप्रोच जो होता है इसको मैं अभी ऑब्वियसली वन नोट पे नहीं दिखाऊंगा,
अप्रोच इज समथिंग जो हर जगह सेम यूज होता है. यू कैन प्ले विथ वैल्यूज, यू कैन प्ले विथ लिस्ट, यू कैन प्ले विथ नंबर्स. अप्रोच कभी नहीं चेंज होगा. जैसे मैं यहाँ तो पे ये दूंगा. कंपाइलर को पता चल जाएगा ना कि हमें कौन सा नंबर ऑफ रोज लेना है, हमें अरे कौन सा नहीं नंबर ऑफ नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने से माना कि जो n है, यहाँ पे मैंने तुमको दिखाया ना कि जब हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, तो आई वांट दैट कि पहला नंबर मेरा रो होना चाहिए, दूसरा कॉलम होना चाहिए. अब वो एक लिस्ट में स्टोर हो रहा है, तो उस लिस्ट का मेरे को पहला इंडेक्स का जो वैल्यू होगा वो मेरा रो होगा, नंबर ऑफ रोज. राइट, मैंने माना, आई हैव अज्यूम्ड. तुम्हारे लिए वो दूसरा हो सकता है. और आई वांट द इंटीजर, आई वांट इट एज एन इंटीजर नॉट स्ट्रिंग. तो इसलिए मैंने ये लिखा. ये मैं बताने के लिए यूज कर रहा हूँ कि आई विल स्टोर द नंबर ऑफ रोज इन अ वेरिएबल नेम्ड n. ठीक है. ओके. ओके. सो शशांक का जो इशू है, शशांक देखो, हम कोई 2D लिस्ट हम बनाते हैं तो देखो कैसे बनाते हैं. जैसे 2D लिस्ट तुम बनाने जा रहे हो तो फर्स्ट यू विल डू व्हाट, फर्स्ट यू विल इनिशियलाइज द बाहर का लिस्ट. ठीक है. अब सेकंड स्टेप इज कि तुम अगर चाहते हो 2,3 का एक लिस्ट बने जिसमें 2 रोज हो, 3 कॉलम्स हो, तो पहला स्टेप होगा कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ लिस्ट बना दो यहाँ पे. सॉरी, 2 रोज. ठीक है. हाँ, ठीक है. बिकॉज हमने पाइथन के इटरेशन का डेफिनेशन दिया था मैंने कि कोई काम को तब तक करो जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए. तो मैंने बोला कि ये एम्प्टी लिस्ट बनाने का काम तब तक करते रहो जब तक इसका काउंट नंबर ऑफ रोज के इक्वल ना हो जाए. ठीक है. अब जब नंबर ऑफ रोज बन गए, बिकॉज ये जो एक लिस्ट है ये एक स्टैक बनेगा, उसके नीचे एक और स्टैक बनेगा, उसके नीचे एक और स्टैक बनेगा, बिकॉज हम जनरली रो मेजर रिप्रेजेंटेशन यूज करते. ठीक है. अब तुम क्या बोले कि ठीक है, अब पहला रो में जाओ, अब उस रो में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने वैल्यूज पुट करो. तो तीन नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो मैंने 3, 1, 2, 3 ये कर लिया. अब आई विल गेट टू द नेक्स्ट रो, आई विल पुट अनदर 3 वैल्यूज, 4, 5, 6. ठीक है. अब यही चीज मैं यहां करने जा रहा हूं. सबसे पहले मैंने रो में गया, रो में जितने नंबर ऑफ रोज थे उतना एम्प्टी लिस्ट बना दिया. ठीक है. इतना मैंने कर दिया. अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये खाली स्पेसेस बन गई हैं. अब मैं चाहता हूं कि एक काम करो संजय, हर एक लिस्ट में घुसो और जितने कॉलम्स हैं उतने वैल्यूज पुट करो. अब ये वैल्यूज कहां से आ रही हैं? ये वैल्यूज यूजर ने यहां दे रखी हैं, तो हम ठीक है यहां से वैल्यूज उठाएंगे. तो हमने बोला कि ठीक है, हमने नंबर ऑफ लिस्ट बना दी. नाउ लेट्स हेड ऑन टू नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर जेन रेंज. जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमें दिए हुए हैं, जस्ट अ सेकेंड, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमें दिए हुए हैं, डू व्हाट कि अगर हम पहले रो में हैं, अगर आउट, इफ यू आर डूइंग इट आउट का ith रो, अगर हम पहले रो में हैं तो i1 होगा, सॉरी i0 होगा, देन 1, देन 2. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हर एक में इस लिस्ट में जो वैल्यूज हैं we'll पुट इट हेयर. राइट. अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी वैल्यूज हैं? मेरे से पूछ सकते हो तुम लोग. ओके, सो मेरे को वन नोट खोलना ही पड़ेगा. संजय, हाँ हेलो. हाँ हाँ. एक डाउट था, सेकंड और थर्ड लाइन में एन और एम जहाँ पे तुम इनिशियलाइज करवा रहे हो वहाँ पे स्ट्रिंग str के बाद ब्रैकेट में 0 और 1 क्यों लिखा है? अगर तुम ये फंक्शन यूज करोगे, ये मेथड यूज करोगे, तो जो 2,3 होगा दैट वुड बी अ स्ट्रिंग, राइट? बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब हम ऐसे इनपुट लेते हैं वो एक स्ट्रिंग में होता है. तुम चेक करो, तुम टाइप करके देखो, टाइप स्ट्रिंग ऑफ 0, इट वुड बी अ स्ट्रिंग. str ऑफ इंडेक्स 0 तुम टाइप करो, देखो तुमको उसका वैल्यू आएगा इंडेक्स. हाँ, एक सेकंड शशांक. अगर मैं स्ट्रिंग लेता हूं तो स्ट्रिंग में आई कैनॉट परफॉर्म दिस थिंग, आई कैनॉट इटरेट ओवर अ स्ट्रिंग. ठीक है. हमको उसका इंटीजर वैल्यू, बिकॉज फॉर आई इन रेंज क्या हो रहा है, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, आई प्लस प्लस होते जा रहा है. तो यू कैनॉट परफॉर्म दैट एडिशन विद अ स्ट्रिंग. मैं इसको डिस्कस करूंगा आगे. पहले लेट मी टेल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ. थोड़ा सा आदि उसके लिए just keep, okay, see, just see here.
let's say 0 1 2 0, this is 1, this is 2, ठीक है. I have some values 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. अगर हम एक 2D लिस्ट बनाए समथिंग लाइक दैट, ये 2,3 रहने दो, चलो 2,3 पे बताते हैं, तुमको इजी रहेगा. बिकॉज जो अभी मैं बता रहा हूँ उसके बिना यू कैन नॉट बिल्ड एन अप्रोच. ठीक है. सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. हाँ, सो मैंने बोला कि माई लिस्ट ए वुड हैव डिमेंशन 2 3 and my list is what 1 2 3 4 5 6. so इसका लेंथ कितना है 6. this is 6 what 2 times 3, so I can store this right mathematically, मैंने जो बताया. okay, now I want what कि इसमें से पहले इतने एलिमेंट उठें और पहले रो में आ जाएं, एंड देन इतने एलिमेंट उठें ये नीचे वाले रो में आ जाए. राइट, मेक सेंस. हम यही चाहते हैं 2,3 में. परफेक्ट. अब इधर ध्यान देखो. नंबर ऑफ रोज कितना है 2. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3. अगर हम मैंने क्या बोला कि चलो अब इटरेट करते हैं इसमें. लेट्स इटरेट ऑन दिस. I would have this if I would like to iterate on this. अगर I का वैल्यू 0 है 1 2 3, I want what कि I अगर 1 है, एक मिनट, कनिष्का काफी लेट हैं आप. एनीवेज, सी हियर व्हाट वी वांट इज कि हमको इस लिस्ट से कौन से पार्ट पहले इसमें चाहिए. हमें चाहिए 0 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक. राइट, करेक्ट. ठीक है. for this second, see what we are doing is essentially if we are storing it somewhere, हम चाहते हैं कि पहले रो में कहां से वैल्यू जाए. अगर हम सॉरी हाँ, हम चाहते हैं 1 से लेके 3 तक जाए. ठीक है. so I want you to just give me a pattern. see, हाँ, अब हम जब this whole thing is this is column 1, this is column 2, this is column 3, this is column 1, this is column 2, this is column 3, this is row 2, this is row 1. ठीक है, yes या no, just give me a yes or no. ठीक. मैंने बोला कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. अब अगर हमको ये पहला रो लाना होगा, तो what we can do is sorry just a second. This is 0, this is 1, this is 2, this is 0, this is 1, this is 2, and this is row 0 row 1. 0 based indexing we follow. ठीक है. तो जब आप पहले रो में हैं, तो अगर हम रो 0 पे हैं, हमें वैल्यूज कहां से कहां चाहिए. चाहिए j is equals to 0 से I wanted j is equals to 2 तक, बिकॉज j से हम कॉलम डिफाइन करते हैं. ठीक है, और i से रो. अगर if i is 0, हम वैल्यू चाहते हैं 0 से 2 तक. मेक सेंस. जैसे अरे पहले रो i से हम रो डिफाइन करते हैं, j से कॉलम डिफाइन करते हैं. अगर रो 0 है भैया, तो आप एक काम करो, j is equals to 0, j is equals to 1, j is equals to 2, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो. अगर रो का वैल्यू 1 है, then what we want, just see here, इस लिस्ट में इस वैल्यू का क्या इंडेक्स है. इस लिस्ट में इस वैल्यू का क्या इंडेक्स है. क्या इसका इंडेक्स इज 0 1 2 3. इसका इंडेक्स 3 है.
इसका इंडेक्स 4 है, इसका इंडेक्स 5 है। So 3 2, so what we want 3 2 6, sorry 3 4 5 5, just a second, बिकॉज अगर मैं जब तक इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बिकॉज ये अप्रोच अगर मैं नहीं समझाया तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू वर्क विथ लिस्ट। भैया नहीं समझ में आया मुझे, कुछ फिर से मैं बता explain रहा हूँ। अच्छा लोके, लेट मी डू इट अगेन। देखो, मैंने बोला कि वी हैव अ लिस्ट 1 2 3 4 5 6। हम चाहते हैं हमारा जो आउट लिस्ट बने वो कुछ ऐसा बने 1 2 3 4 5 6, राइट? हम ऐसा चाहते हैं। दिस इज हाउ वी वांट आवर आउट लिस्ट। तो हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज आई वो यहाँ से आए इतना, ये वैल्यूज आप पहले रो में डालो और ये वाली वैल्यू आप सेकंड रो में डालो। ठीक है, ठीक है। अब जरा यहाँ से देखो, दिस इज रो 0, दिस इज रो 1, ठीक है। दिस इज कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है। यू कैन सी दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जिसका जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे करोगे तो कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है। फॉर फर्स्ट रो, पहला रो अगर हम चेक करें, फॉर फर्स्ट रो that is I is equals to 1. Here m is what? Number of columns. Number of columns is 3. Number of rows is 2. अब इस लिस्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ इंडेक्स बताओ। 1 का इंडेक्स कितना है? लिस्ट ऑफ 0 is your value 1. List of 1 is your value 2. List of 2 is your value 3. ठीक है, ठीक है। सॉरी, फॉर I is 0. I is 0, या इस लिस्ट में अगर ये L मान लो, कॉमा L, इस लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है, सेकंड इंडेक्स पे ये है, थर्ड इंडेक्स पे ये है। अब अगर हम सेकंड रो का बात करें, जस्ट सी एकदम, फॉर सेकंड रो, तो सेकंड रो के लिए आई कितना हो जाएगा? 1, राइट। हमें क्या चाहिए इस लिस्ट से? वी वांट 4, वी वांट 5, वी वांट 6, राइट। L L ठीक है, ये वैल्यू मेरे को चाहिए 4 5 6। आई वांट टू पुट दिस इन द सेकंड रो ऑफ आवर आउट। सी, ये वैल्यू हमको सेकंड रो में चाहिए। यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो। अब when your row is 1, you have to take from 3 4 5, 3 4 5। जब I का वैल्यू 0 है, 0 1 2, 0 1 2। so if you break this 3, so can we write this thing is essentially ये कॉलम, ये किस कॉलम के लिए? ये कॉलम 0 के लिए, ये कॉलम 1 के लिए, ये कॉलम 2 के लिए वैल्यू, राइट। ये कॉलम 0 के लिए है, ये कॉलम 1 के लिए है वैल्यू, ये कॉलम 2 के लिए है। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब अगर 3 को हमको यही आई एम और जे के फॉर्म, कैन वी राइट 3 एज समथिंग लाइक 1 into 2 plus, sorry, 1 into 3 plus 0? Can I write 4 as 1 into 3 plus 1? Can I write 5 as 1 into 3 plus 2? Can I write it like this? अब यहां से ध्यान से देखो, कैन आई, लेट्स डू इट फॉर दिस ऊपर वाला थोड़ा सा, जस्ट अ सेकंड। हाँ, कैन आई राइट 0 as, कैन आई राइट 0 as 0 into 3 plus 0? Can I write 1 as 0 into 3 plus 1? Can I write 2 as 0 into 3 plus 2? So essentially what we are doing is, हमने बोला कि get me only those element which are in this form, I into m plus j. Get me
only these values. See, हम किसी भी i के लिए हम चेंज, तुम चेक कर सकते हो, डू यू मैथ्स बाय योर ओन, हमको कोई भी i के लिए अगर हमको उठाना होगा, मेरे को यही एलिमेंट चाहिए, j जितना हमको क्वेश्चन में दिया होगा, i हमको जितना क्वेश्चन में दिया होगा। आई ओनली वांट दिस पार्ट आउट ऑफ दिस लिस्ट। और हम इसको स्टोर कहाँ करेंगे? आई वांट टू स्टोर इट इन आउट के ith रो में। You can do this math and you can verify yourself for this list. मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। You can actually pen this down because मैंने already बोला whenever we are doing something आपके पास एक notebook होना चाहिए। You can actually build that approach here. मैं आता हूँ अपने VS Code पे। Let's decompose this thing. तुझे एक मिनट थोड़ा नीचे कर दो। शशांक, I'll provide this thing. मैं IDE पे आ रहा हूँ, ठीक है? I'll give it to you. ठीक है, ठीक। परफेक्ट। तो यू सी, अभी तक हमने क्या किया, हमने वैल्यूज उठाई। आई आउट के ith रो पे हमको क्या अपेंड करना है? वी वांट टू अपेंड समथिंग एज कि भैया आप उस लिस्ट के i टाइम्स m प्लस jth एलिमेंट जितने आ रहे हैं उसको आउट के i पे आप पुट कर दो, ठीक है? एंड यू सिंपली पुट आउट। लेट्स डू दिस। 2,3 1 2 3 4 5 6। what happened? Let me check. List out of index. Just a second. क्या हुआ? Okay, list. tada, your value is there. क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो जस्ट वॉच दिस सेशन, मैं जब यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है? एक बार फिर से समझना, बिकॉज ये वैल्यू हमने डिराइव कैसे की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं चाहता तो ये बोला कि ठीक है तुम अपने से इसको चेक कर लो, बट आई वांट टू बिल्ड दैट अप्रोच की वैल्यू आई कहां से, ठीक है? आई गेस मोर और लेस क्लियर हो गया ये चीज कैसे हुआ। इफ नहीं क्लियर हुआ, हम सेशन के लास्ट में यू कैन जब अपलोड कर दूंगा, यू कैन रिविजिट द प्लेलिस्ट। So out of this list, let me print this list also for you. Let me print this list so you can actually get कि actually हमने किया क्या है। 2,3 1 2 3 4 5 6। See, हमारी लिस्ट ये थी ओरिजिनली, हमने उसको बाइफर्केट कर दिया, पार्टीशन कर दिया into a list of having 2 rows and within every row we would be having 3 columns. Make sense? Make sense? आया सबका? सो इतना बड़ा कोड ऑब्वियसली थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मेरे को आदत है कम स्पेस यूज करने का, तो ठीक है संजय भैया, लेट अस डू दिस यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लेट अस डू इट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। एक बात जरा ध्यान रखो कि ये जितना पार्ट है इस कोड का, इससे मेरे को एक्चुअली वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, राइट? फॉर j in range m out at index I and append this whole thing, ये मेरे को एक्चुअली वैल्यू जनरेट करके दे रहा है, और ये वाला पोर्शन मेरे को एम्प्टी लिस्ट जनरेट करके दे रहा है, राइट? सही बोला मैंने? बताओ कोई। मैंने बोला कि इतना पार्ट जो ये कोड का है, इससे मेरे को वैल्यूज मिल रही हैं, और इस वाले पोर्शन से मेरे को वो एम्प्टी लिस्ट जनरेट हो जा रहा है जिसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ठीक है, लेट अस डू इट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लेट्स डू इट यूजिंग, भैया एक मिनट मेरा एक मिनट। हाँ बोलो। भैया मेरा एरर दिखा रहा है, नेम एरर। कौन एरर? नेम एरर। देखना अपना जो वेरिएबल यूज किया उसको तुम सही से डिक्लेयर किए हुए नहीं, और सही जगह यूज किए हुए नहीं, ठीक है? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? बिकॉज ऑलरेडी 1 आवर होने जा रहा है, मेरे को नंपाई भी कवर करना है, ठीक है? मैंने क्या बोला कि इतने वैल्यूज जो है ये मेरे लिस्ट के अंदर वैल्यूज जनरेट करेंगी, ठीक है? लेट्स डू इट फॉर सम आउट टू। लेट्स हैव दिस लिस्ट, एंड व्हाट आई सेड इज कि इस लिस्ट के अंदर ये जो वैल्यूज हैं, ये मेरे को वैल्यूज जनरेट करके दे रही हैं i टाइम्स m प्लस j। ये वैल्यूज आ रही हैं, और ये वैल्यूज कहां तक इटरेट करेंगी? अभी मैंने बताया फॉर j इन रेंज, 1 मिनट वंशिका, ठीक है?
सो इस पार्ट से मेरे को लिस्ट की जो वैल्यूज है वो आ गई. लेट मी राइट इट लिस्ट हियर. ठीक है, ठीक है. अब नाउ लेट्स सी कि अगर मैं सिर्फ आउट टू अभी कर दूं तो लेट्स सी क्या आता है. लेट्स सी क्या आता है. लेट मी कमेंट आउट दिस पार्ट. don't want to do this thing. Let me comment it out. So आर्या इज सेइंग अब मेरे को पता लगा आपका लेक्चर, बिकॉज मैं वो पार्ट तुम लोग पर छोड़ सकता था, गेट आउट की कैसे वो पूरा फॉर्मूला है, बट मेरे को समझाना था. So if I do this thing, what I'm getting is this only, this value. I don't want this. मेरे को ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए. I want the entire this इतना से. ठीक है भैया, आपने इतना कुछ किया, ठीक है. Let's do what? कि let's iterate for इतना वाला पोर्शन. Let's iterate for इतना वाला पोर्शन for I in range n. Oh, sorry, this would be m because हम कॉलम में iterate कर रहे हैं. And this was my mistake. Let's 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाँ वंशिका, आप बोलो. See, you get this 2D list. हाँ वंशिका. भैया मेरा अब इंडेक्स एरर आ रहा है. इंडेक्स एरर आ रहा है, दैट जैसे मीन्स दोपहर आप में. वो वैल्यूज एक्सेस करना चाह रही हैं जो उस लिस्ट में है ही नहीं. टिल देन डू व्हाट? कोई अपना ऑनलाइन आईडी खोल लो, उस पर फ्रेशली लिखो, मेरे को स्क्रीनशॉट ले लो उसका एंड जस्ट टेल मी. ठीक है, इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है? शुड वी प्रोसीड आगे? अगर ये क्लियर नहीं है तो यू कैन एक्चुअली सिट डाउन, कोड अपने से ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, बिकॉज मैं स्पून फीडिंग में बिलीव नहीं रखता हूं. मैंने तुम्हारा अप्रोच बिल्ड कर दिया कि कैसे हम क्या कर रहे हैं. पहले हम एम्प्टी लिस्ट बनाए, एम्प्टी लिस्ट में फिर हमको जितना बोला गया उतना वैल्यूज हम पुट करते गए. जितना हमको बोला गया है कॉलम में उतना वैल्यूज हम पुट करते रहे. जितना मेरे को बोला गया है वो वैल्यूज हम पुट करते रहे, और ऐसा हम इतना बार किए. दिस इज योर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. अगर इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में किसी को डाउट है, पहले तुमको मैंने डॉक्यूमेंटेशन भेजा है, जाओ अच्छे से पढ़ो लिस्ट डॉक्यूमेंट. क्योंकि देखो इतना 1 2 3 4 5 लाइन का कोड मैंने एक सिंगल लाइन में लिख दिया. एक सिंगल लाइन में मैंने लिख दिया. तो दिस वाज एसेंशियली योर 2D लिस्ट. यू कैन डू वॉट एवर जो तुम कर सकते हो लिस्ट के साथ. हेयर ऑल्सो यू कैन डू एवरीथिंग एज यू लाइक. Now let me actually get to the more interesting part. Okay, let me present this thing. थोड़ा सा आज का सेशन लेंदी होगा, काइंडली फॉरबिड मी, बट मैं भी बैठा हुआ हूँ, मेरे को भी गर्मी लग रहा है, मैंने भी अपना काम छोड़ के आया हुआ हूँ. ठीक है, मैंने ये बताया कि अगर रो मेजर ऑर्डर में है तो एक रो उठाया, एक जगह स्टैक कर दिया, सेकंड रो उठाया, सेकंड जगह स्टैक कर दिया, थर्ड रो उठाया, थर्ड जगह स्टैक कर दिया. कॉलम मेजर में एक कॉलम उठाया, एक जगह स्टैक कर दिया, दूसरा कॉलम उठाया, दूसरी जगह स्टैक कर दिया, तीसरा कॉलम उठाया, तीसरी जगह स्टैक कर दिया. मेक सेंस? ठीक है, मेक सेंस, परफेक्ट. नाउ लेट्स हेड बैक. ओ सॉरी, लेट्स, हो गया ये सॉल्व. परफेक्ट वंशिका, परफेक्ट परफेक्ट. सो लेट्स बिल्ड सम प्रोग्राम्स. मेरा फेवरेट पार्ट. अब मैं प्रोग्राम का कोड नहीं बताऊंगा, आई विल बिल्ड एन अप्रोच फॉर यू. ये तुम्हारा होमवर्क है, जैसे मैंने बोला असेसमेंट. गिव मी अ कोड जिससे हम इसको बिल्ड करेंगे. आई टेल यू द अप्रोच, आई टेल यू द सूडो कोड. ठीक है, ठीक है. लेट्स बिल्ड अ वेव पैटर्न. लेट्स डू व्हाट? लेट्स build a wave pattern. What do I mean by wave pattern? See, you are given a 2D list. Okay. तुमको एक 2D लिस्ट मिला हुआ है, and let me write it in this way. 1 2 3
4 5 6 7 8 9. So this is your 2D list and I want you to print it like that कि तुम 1 पहले प्रिंट किए, 4 मतलब ऐसे गए, ऐसे प्रिंट किए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए प्रिंट किए. You print it like this. So for the output I want it like 1 4 7 8 5 2 3 6 9. डिफिकल्ट लग रहा है? अगर डिफिकल्ट लग रहा है रेज योर हैंड. अगर डिफिकल्ट लग रहा है रेज योर हैंड. भैया एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. मैंने बोला कि यू आर गिवन दिस 2D लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ठीक है. एंड व्हाट यू हैव टू डू, तुमको इसको इस तरह से प्रिंट करना है कि जैसे एक वेव होता है ना, ऐसे एक वेव होता है ना, जैसे जैसे ये वेव आ रहा है वैसे वैसे वैल्यूज जो इसमें प्रिंट होती जाए. अगर वेव ऐसे से ऐसे हुआ, लेट्स सी, तो पहले 1 आया, 4 आया, 7 आया, वैसे प्रिंट कर दिया. फिर ये वेव ऊपर जा रहा है तो 8 5 2 ये प्रिंट किया मैंने. देन ये नीचे आया तो 3 6 9 ये प्रिंट किया. क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्लियर हुआ क्वेश्चन? वंश, सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ? कितने लोग को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है? ओके, बहुत लोग को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, बट ट्रस्ट मी अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा. ओके, ठीक है, ठीक है. साथ में देखो मैम, देखो पहले लेट्स ट्राई टू डिकम्पोज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को डिकम्पोज कैसे करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो व्हाट आई सेड एसेंशियली इज कि ठीक है, लेट्स हैव अ 2D लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यू आर गिवन विद दिस लिस्ट. एंड सी देखो मैं कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करता हूँ. ठीक है, ये तुमको लिस्ट मिला हुआ है एंड व्हाट आई वांट इज आई वांट टू प्रिंट इट लाइक दिस, राइट? पहले तुम नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर जैसे जैसे वैल्यूज हैं वैसे वैसे तुम इसको प्रिंट करते जाओगे. ठीक है, तो एक चीज नोटिस करो कि अगर हमको कोई वैल्यू को प्रिंट करनी है तो आई हैव टू कंसीडर कॉलम्स. एक कॉलम के एलिमेंट को हमको प्रिंट करना है, राइट? लेट्स ट्राई टू हैव सम ऑब्जर्वेशंस. मैंने पहला ऑब्जर्व क्या किया कि कुछ भी मेरे को प्रिंट करना है, इट वुड बी करस्पॉन्डिंग टू सम कॉलम्स. अगर ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, राइट? What we are doing is we are essentially printing the whole column. Make sense? पहला थिंग क्या है? पहला थिंग क्या है? फर्स्ट थिंग क्या है? अरे जस्ट वेट, लेट मी एक्चुअली डिकम्पोज अ प्रॉब्लम. देखो कितना इजी होता है, प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होता, तुम लोग को डिकम्पोज करने नहीं आता है. तो मैंने क्या बोला, लेट अस से कि वील डिनोट आई FCFS नहीं, आई से लेट अस डिनोट रोज, फॉर J लेट अस डिनोट कॉलम्स, NS. ठीक है, तो पहले बोला कि भैया आप एक काम करो, आप सबसे पहले एक रो में जाओ, कॉलम में जाओ, गो टू Jth कॉलम. ठीक है, J 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 हो सकता है. ठीक है, हर एक कॉलम में हम एसेंशियली सेम थिंग कर रहे होंगे. अब जरा यहां से ध्यान रखो, अगर कॉलम 0 है तो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं. वी आर गोइंग डाउन, राइट? यू सी, कॉलम 0 हम नीचे जा रहे हैं, यस या नो? अरे जस्ट ड्रॉप अ यस या नो. मैं तुम लोग को नहीं देख रहा हूं, आई एम जस्ट लिसनिंग टू योर रिस्पॉन्सेस. लाइक परफेक्ट. अगर कॉलम 1 है तो आर वी गोइंग अपवर्ड? अगर कॉलम 2 है तो आर वी गोइंग डाउनवर्ड? ऐसे कॉलम 3 होगा तो आर वी गोइंग अपवर्ड? राइट? ठीक है, तो एसेंशियली क्या करना चाह रहे हैं कि भैया आप हर एक कॉलम में जाओ और चेक करो कि क्या वो कॉलम ऑड है या क्या वो कॉलम इवन है. सो आई सेड कि आप एक कॉलम में जाओ एंड इफ J इज इवन, अगर J इवन है तो यू गो डाउन. सो बाय गोइंग डाउन व्हाट आई मीन, दिस इज रो 0, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2. डू व्हाट? रो में इटरेट करो, अब पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रिंट कर दो. पहले रो में गए, 0th कॉलम का एलिमेंट मैंने प्रिंट कर दिया. दूसरे रो में गए, 0th कॉलम का एलिमेंट मैंने प्रिंट कर दिया. यस वंशिका. थर्ड रो में गए, दैट इज रो ऑफ काउंट 2. थर्ड रो में गए,
पहले इसका प्रिंट कर दिया. सो व्हाट वी सेड, इफ j is even, print what? Print, let's say we denote it with L. तो भैया आप क्या की, अच्छा नहीं, if this is your, go till okay, just a second, let us assume कि इस 2D लिस्ट का डायमेंशन है n रोज, नंबर ऑफ रोज, एंड m नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, अब हो जाएगा, मतलब लूप्स तुम लोग को इजी कर दूं. अगर jth कॉलम है तो m तक जाओ, जितने कॉलम से सब में हम सेम थिंग करेंगे. अगर j इज इवन, डू व्हाट, go to ith row in this range n and do what, print all the rows corresponding to that particular column. Print what? Print all the rows corresponding to this column or this column or this column. So this is for even. If else agar, let's say we have some even column. Oh, my mistake. नहीं, हाँ सही है, हाँ सही है. Let's we have this first C1. So C1 is odd. That means what we have to do for odd, we are doing what? We are starting with the last row and we are going to the first row. So we have to traverse this row in reverse order. ठीक है भैया, आप एक काम करो, आप go to the ith row and do what? Okay, no, don't go to this. आप एक काम करो, आप पीछे से रो को ट्रैवर्स करो. तो पीछे से क्या होता है, n minus 1, comma 0, comma minus 1. This is essentially how we traverse from right hand side, right? शशांक क्या हुआ बताओ, नहीं समझ में आया? संजय, तुम ये कॉलम को इवन और ऑड कैसे, किस बेसिस पे मेजर कर रहे हो? लाइक अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है उस बेसिस नहीं पे नहीं ऑड नहीं कीजिए. नहीं नहीं, कॉलम का इंडेक्स देखो ना, कॉलम का इंडेक्स 0 है. तो दिस 0 इज C0, C1, C2, C0 is even, C2 is ओके even. ओके 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 हाँ. सॉरी. नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स हमको यहाँ मतलब नहीं है. So this is how we traverse in an array essentially. पीछे से n minus 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 तक जाना है, एंड यू स्टेप बैक 1 स्टेप पीछे पीछे. ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट. वी हैव सीन दिस इन लूप्स. अगर इसमें किसी को डाउट है, गेट टू माय लूप वाला लेक्चर, आई हैव एक्सप्लेन दिस. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्रैवर्सिंग नीचे से and just print out everything and print what, L corresponding to ith row and jth column. अगर मैं एक सीडो कोड इसका लिखूं, ठीक है, अगर मैं एक सीडो कोड लिख दूं इसका तुम लोग के लिए, यू कैन एक्चुअली ट्राई इट आउट. ये तुम्हारा असेसमेंट है, जस्ट गिव मी अ कोड फॉर दिस. सो लेट्स डू व्हाट आई सेड, फॉर j in range m, if j is divisible by 2 completely, do what, for I in range n, print L of I comma j. ठीक है, if that is your case, else do what, for I in range n minus 1 to 0, print L I j. Is it clear? Make sense थोड़ा थोड़ा? This pseudo code, अब L I M अपने से you can do it. Is it? क्या ये सेंस बनाता है तुम लोग के लिए? दिस एल्गो, दिस वाज द एल्गो जो हमने यूज किया. सेंस समझ में आया क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड हाउ वी कैन राइट इट इन अ कोड. अब इस कोड को आई एम प्रीटी श्योर कि तुम सब लोग लिख लोगे. ये मैं अब नहीं डील कर रहा. आई एम हेडिंग ओवर टू पाइथन, सॉरी नमपाई.
कैसा लगा ये कैसा लगा ये चीज कि यू कैन जस्ट सिंपली डिकम्पोज अ प्रॉब्लम वेरी इजिली, यू कैन हैव टू जस्ट मेक सम ऑब्जर्वेशंस. शशांक, प्रथम, was it clear? Clear. वंशिका, नंदिनी, आदि, आर्या, क्लियर था? शाश्वत, इजी. मेरे को इसका कोड मिल जाएगा. इफ यू कैन राइट द कोड, डू व्हाट? Go to LinkedIn, record yourself with a video and just tag me. That is your assignment. I'll mark you on that. अगर कोई टॉपर होगा तो आई कैन गिव हिम सम गिफ्ट और गिव हर सम गिफ्ट पर्सनली. स्कूल कॉलेज खुलने पे अगर वो बाहर का है तो आई कैन गिफ्ट हिम आउट उसके एड्रेस पे. सो गो आउट टू योर लिंक्डइन, रिकॉर्ड योर सेल्फ विद दैट कोड, टेल अस द अप्रोच योर सेल्फ कि तुम क्या कर रहे हो. राइट दिस कोड अपने से. मैंने बस सूडो कोड लिखा है. एंड जस्ट टैग मी, आई विल रेट यू आउट ऑन दैट. जितना मैंने अभी बताया, वाज इट क्लियर? शुड बी हेड टू नमपाई. परफेक्ट, परफेक्ट. गिफ्ट में 500 रुपए. शाश्वत, 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 शाश्वत. ओके, ओके. Let me. Okay. So I guess, can we have this? Can we have this? Can we have this program by you all? Write a program which accepts input. जो भी required input है अपने हिसाब से ले लो यूजर से, and create a wave pattern. ठीक है, बन जाएगा. Can I take it as a yes? अच्छा लगा कैसे हमने प्रॉब्लम को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया. परफेक्ट. लेट्स हेड बैक टू numpy. ओके, इसके बाद था numpy. ठीक है. What is this behavior? wave pattern means मैट्रिक्स के फॉर्म में ना. See, you are essentially printing a 2D list in a wave pattern. अगर तुम normal अगर 2D list को print करोगे, it would print it like in a row column row major representation. एकदम सीधे सीधे ऐसे print कर देगा. I don't want that. I want it in this way. Perfect. So let's see कि numpy क्या है, क्यों है और कैसे है. So let's define what NumPy is. NumPy is the fundamental package for scientific computing. बहुत lame सा definition है. You can do literally any type of calculation, any type of computation with this library. क्यों जरूरी है? Because whenever we use this list are बहुत ज्यादा heavy पड़ता है system के लिए. Because if you want to access something in a list, बहुत टाइम लेता है मेरे को टू गेट मी द वैल्यू. व्हेन यू एक तुम लोग के लिए होमवर्क है. देयर इज दिस मॉड्यूल नोन एज टाइम. यू कैन यूज दैट टाइम डॉट स्टार्ट, टाइम डॉट एंड. तुम एक्चुअली अपने कोड कितना एग्जीक्यूशन टाइम लिया है, यू कैन गेट द वैल्यू. कितना एग्जीक्यूशन टाइम, कितना सेकंड लिया है कोड. सो इफ यू वांट टू गेट सम वैल्यूज आउट ऑफ अ लिस्ट, जस्ट सी कि वो वैल्यू कितना है. So in comparison with when we would be using NumPy, it is 50 times faster. It is 50 times faster. And time complexity, शाश्वत, हाँ, kind of. सिर्फ time नहीं, space complexity भी है. Because when we are dealing with list does not store data in continuous memory location. Continuously उसको store नहीं करता है. Moreover, list में you can store any kind of data. अगर इंटीजर है तो लेट्स से इंटीजर 4 बिट्स स्टोरेज ले रहा है, 4 बिट लिया. अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अगर कुछ n बिट्स ले रहा है तो वो n बिट्स आगे. तो एक कंटिन्यूअस पैटर्न नहीं रहता है. NumPy क्या करता है कि सब जितने भी जो भी वैल्यूज तुमने दे रखी हैं सबको एरे में कन्वर्ट कर देता है. चाहे वो स्ट्रिंग दो, चाहे वो नंबर्स दो, विल सी. एंड हाउ? बिकॉज जो लोग बोलते हैं कि सी का क्या यूज है, लेट मी शो देम. NumPy library is written using C language because C language is essentially very fast language. One of the fastest language after your assembly language is the C, and this entire NumPy library is built on that. ठीक है?
Okay, so let's get to this documentation first. Let me give this documentation once again. Kindly refer to this documentation. We will learn right now what we are gonna do here. बहुत easy है, trust me. The most important thing is how do you actually practice on that. कितना ज़्यादा तुमको documentation तुम अच्छे से देख सकते हो, that is the most crucial aspect. Otherwise कुछ ज़्यादा है नहीं numpy में. So in order to use numpy, the first thing is numpy is something जो तुम्हारे Python के साथ नहीं आता है. You have to get it from बाहर से. So if we want to import something, we want to get something out of the scope of Python, we use this keyword import numpy. ठीक है? We will use this. If you're doing what? If you are actually using Google Colab, ठीक है? You can use a hashtag function. अगर तुम IDE use कर रहे हो कोई तरह का, let's say your VS Code or something, you can get to your terminal, open your terminal, type this. Okay, let me open that terminal for you. Control this. Okay, so this is my terminal. I can write pip install whatever is your. See, मेरे में ये ऑलरेडी है इसलिए ऐसे दिया, अदरवाइज तुम करके देख सकते हो, तुम्हारा वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. Okay, so let's do what? Let's begin with NumPy. So since some NumPy is not in the scope of Python, जो तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है, तो you have to get it from outside. So मैंने एक documentation यहाँ भेजा. You can actually get to the documentation. Let me show this documentation to you. Let's see how we actually start reading documentation. See, if you have already used Python, you can use this thing in your terminal. You will get it. How to import NumPy? See, you can copy paste this thing. Import NumPy is NP. See, we have shortened the imported NumPy for better readability. तुम चाहो तो NumPy के साथ भी कर सकते हो, but इतना बड़ा वर्ड हम लोग generally use नहीं करते हैं कोड में. इतना टाइप कोई करेगा नहीं. We use some short keyword shortcuts use करते हैं. Okay, let me share my window actually. Let me share my window. Just a second. क्या मेरा विंडो विजिबल है? Can anyone tell me? Okay, window visible है? Perfect. See, I'll simply copy paste this thing here. If you want to type it out, well done, no issues. So what had happened is, अब तुम्हारे जब तुम्हारा interpreter इसको read करेगा तो it will get NumPy and it would use it. See, this NP is here. NP को हम लोग बोलते हैं alias. This is your alias here. Okay. So let's first see how do we declare. See, in NumPy, whatever we would be doing is we would be storing it in some kind of NumPy array. So ठीक है, हम नीचे देखते हैं. Let us see. Do we have something? How to create a basic array? ठीक है. So in order to get a basic array, what you did is you use this function known as dot array, and in that you pass whatever you want to print it. See, if I write it down and if I run this thing, अच्छा, let me print this thing. See, you get this array in which you have this values. आया सबका? Just say a yes or no. अगर तुम कोई Replit या ये सब यूज करे तो वहां के शेल में जाके you can use that pip install numpy, you will get everything. क्या ये values आई या मैं आगे बढ़ूं? See, what essentially what you are doing is, तुमने numpy array, you use this function
सी np इज दिस एलियस बिकॉज हमने बोला कि हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे np, इफ यू डोंट यूज इट, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम सीधे यहाँ पे numpy लिख दो, and even if you print whatever you want to have it, you can have it in square brackets. You will still get, बट इतना numpy कौन लिखने जा रहा है यार इतना? अभी तो 1-2 लाइन का कोड है, जहाँ पे 100, 200, 300 लाइन की कोड होगी, वहां पे क्या करोगे? ठीक है, I'll use this alias, I'll simply write np. So what is, अगर ये वाली डॉक्यूमेंटेशन किसी को क्लियर, तो सी what it is doing is it is simply converting this list into a numpy array. Actually ऐसे हो नहीं रहा, but it is just for the visualization. So you can pass, let's say you can have a list here, L, you can have some values here, 1, 2, 3, and I can simply pass this L here. See, I'll still get this. Make sense? Make sense? Just say yes or no. Perfect. So there are different functions you can work around with, like np.zeros. It will create you. What happened is, oh, sorry. This is a, let me print this. Module numpy has no attribute zeros. Okay. Oh. See, you would have a list in which itna number of zeros would be placed. Jitna tumne. Let's say I want to have 5. See, you have an array in which, if you want to type, I want to print this thing, you're always free to print. See, मैं तुम लोग को टाइप इसलिए बताता हूँ because you can actually see कि actually behind the scene क्या हो रहा है. See, this is a numpy and n dimensional array. You can have 2-dimensional, 3-dimensional, till n dimensional arrays. So in the documentation you can see you can have an empty list, you can create this with ones. I guess more or less ये clear है. मैं आगे बढ़ूँ? See, एक इसमें you can also use np.linspace to create an array of values that are spaced linearly. Like from 0 to 1, you want to have values which are having same difference. That is, you can say you want to have some arithmetic mean जिसमें common difference हो कुछ. ठीक है? Let's run this. Let us change some values and let's see how does it work. बहुत easy है numpy. And okay, sorry. Then actually इसमें documentation से इसीलिए पढ़ाना चाहता हूँ because you can actually head over and see कि what is working and what is not. Okay, oh, this is not what we want. Right. So what you are saying is, generate me numbers from this value to this value, generate me numbers from this value to this values, और इतने numbers generate होने चाहिए. ठीक है? So if this is the total number of, or you can say this is the count of total numbers. See, 1, 2, 3, 4, 5. इतने numbers हुआ. You can have, let's say 4. So the first value is 0, 3.33, 6. तो more or less इन दोनों numbers के बीच में जो difference होगा वो common होगा. So essentially you are generating an arithmetic progression. If I say I want to have some 10 values, see. So you can actually play with this, see क्या होता है क्या नहीं होता है. Let's learn sorting. You see, in order to sort something, let's declare some array. Let us say my array is np dot array. In this I want to put some 1, 2, 3. Okay, let me randomize it. 1, 3, 5, 9. Okay, this is my np dot array. And what I said is essentially do what np dot array. No, let's sort this thing first. I want to sort it out, and we'll pass whatever we wanna. See, you have an array which is already sorted. अब just tell me one thing. अगर मैं sort function बनाने जाता तो मेरे को कितना line of code लिखना पड़ता?
राइट? अब वही वही काम मैं यहाँ पे सिंपली बहुत कम टाइम में कर लिया। मेक सेंस? मेक सेंस? जस्ट टेल मी yes या no. And let me try to tell you one more thing. NumPy array operations are vectorized. They are what? They are vectorized. What do I mean by vectorized is, let me demonstrate it using a list. Okay. So let's do what? We have this array. Okay. We have this array. Let us do what? Let us declare a list. We'll put the same values here. We'll put the same values here. ठीक है? अब मैं बोलूं कि भैया एक काम करिए, लेट्स डबल एवरी डू वन थिंग, कि भैया आप एक काम कीजिए, आई वांट दैट कि हमको हर एक वैल्यू डबल हो जाए। इफ आई डू व्हाट, मेरे को डबल नहीं, मेरे को लिस्ट 2 बार प्रिंट हो गई। तो अगर मेरे को डबल करना होता तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इटरेट थ्रू एवरी एलिमेंट, आई हैव टू डबल इट एंड आई वुड हैव टू स्टोर इट विद इन दैट ओनली लिस्ट। करना पड़ता मेरे को कि भैया आप हर एक एलिमेंट को उठाइए, उसको डबल कीजिए और वापस से उस लिस्ट में डालिए। सो व्हेन वी आर वर्किंग विद लिस्ट, हम एक ऑपरेशन मल्टीपल एलिमेंट में नहीं कर सकते, सारे एलिमेंट में नहीं कर सकते, हमको इंडिविजुअली एक्सेस करना होगा, चेंज करना होगा, वापस पुट करना होगा। करेक्ट? बट लेट्स डू व्हाट, लेट्स प्रिंट दिस। लेट्स प्रिंट दिस। सी, जो यहां वैल्यूज थी सब डबल हो गई। हुआ सबका? हुआ सबका? So what do I mean by vectorized operation? It is simply that हम whatever operations, जो भी हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, we want to perform, it can be done मेक सेंस? हमने जो करना चाहा वो एक बार में पूरे लिस्ट में हो गया। इफ आई वांट टू ऐड इट विद समथिंग, ठीक है, वी कैन ऐड समथिंग। लेट्स से भैया आप अरे हर एक में 3 ऐड कर दीजिए। लेट्स, हाँ ठीक है, 3 ऐड कर दीजिए। सी, जो यहाँ पे था उसमें 3 ऐड हो गया। बट अगर मेरे को इसको लिस्ट के थ्रू करना पड़ता तो हमको एक एक एलिमेंट को इटरेट करना होता, बाहर निकालना होता, ऐड करना होता, वापस लिस्ट में डालना पड़ता। करेक्ट? बट दिस इज नॉट वी आर डूइंग हियर। सो वेक्टर ऑपरेशंस मींस जिस भी कंटेनर में हम ऑपरेशन स्टोर कर रहे हैं, वी कैन एक्चुअली परफॉर्म एवरीथिंग इन दैट स्टोरेज एट अ सेम टाइम। लाइक मैं यहाँ ऐड करना चाहा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, सॉर्ट, जो भी ऑपरेशन तुमको करना, यू कैन थिंक ऑफ एनी ऑपरेशन, यू कैन डू इट simultaneously in the entire NumPy array. Are we clear with this? See, there are like you can use argument sort, you can use partition sort, you can do whatever you want. So if you want to print some, let's say this was okay, let's do what, we have this function ndim. What does it say कि इस list का, इस NumPy array का dimension क्या है? So since it is a linear list, dimension 1, ठीक है? But let's say if we have something like this, okay, essentially this is also a list, so I'll have to put it here. Let's have some values. 3, 4, 5. This is essentially a list also. Okay, let's print ndim. You see, you will get this error because that is not how we, जैसे हमने लिस्ट में सीखा, हमने सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पास कर दी 2 और हमें 2 लिस्ट मिल गई। That is not how we do it here. In order to get that value, see यहाँ पे there is one way. ये दिख रहा है सबको? अगर if you are using your laptop, kindly open your documentation together. So in order to get some list,
in 2 dimension, we can simply change some value. We can get any like 1 comma 2 comma 3 3 comma 4 comma 5, and if I, let's say I want to print this thing, first we'll print it, then we'll print its dimension. Print x, and let's do what? Let print its dimension. See, first you get the 2-dimensional list, sorry, 2-dimensional array, and still you're getting sorry, a, my mistake. इसका dimension कितना है? 2. You are having this dimension. If you want to find out कि भैया how is it even like x और y axis में कैसे bifurcated है, you can use this. So it has 2 rows, it has 3 columns. आया सबका? But I want, ठीक है भैया, ये 2,3 में I want that कि भैया ऐसा कीजिए, convert it in 3 rows and 2 columns. इसका उल्टा कर दीजिए. तो shape है तो ठीक है, I'll reshape it. I'll reshape it in 3 rows and 2 columns, and I'll print it. See now, essentially अब इसने क्या किया, 2 रो और 3 कॉलम को 3 रो और 2 कॉलम में चेंज कर दिया. मेक सेंस? आया सबको? See, इस डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, you can use, see this is your array, you can have, if you want to find the number of dimension, you can use this. Total number of array, you can use dot size. To find the shape, you can use this. Can you reshape it? Yes, we'll use this function. That is how you actually read an documentation and implement it. You can use this arrange to get some values from 0 till this upper index. You will not include this upper index. You can reshape it different ways. This is purely तुम्हारे ऊपर, ठीक है? If you want to convert, see, if you want to convert a 1D array in 2D array, you can read it. मैं आगे बढ़ूं? You can use this documentation to learn. You can slice it out in the same way. जैसे मैंने बताया, घर में जाओ, घर के बाद तुमको बताओ कहाँ से कहाँ जाना है, you can use it. मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा. Let's do what? Let's try to see. You can create it. पूरा documentation तुम लोग के ऊपर है. You can read it out. Let's try to build some array operation. You can actually add arrays. You can actually subtract arrays. Let's do what? Let me present you this. Okay. So let's do what? Let's perform some array operations. ठीक? My first array is, let's say, np dot array. I said 1 comma 2 comma 3. Okay. Perfect. My b is np dot array. I said okay, 4 comma 5 comma 6. Can we have a plus b? Yes, we can have a plus b. We will simply add the corresponding values. Can we do some multiplication? Obviously, we can do some multiplications. Can we have some division, or you can choose whatever you want. So let's say what I want to do is I want to include these both of them. So in order to concatenate it, can I expect कि तुम लोग concatenate function use कर लोगे? Dot concatenate. Concatenate. How you want to concatenate? A comma b. Only integer scalar you can have. Okay. See, you will always have this. You can only do concatenation with scalar arrays. But as I've said earlier, this was a vector array. So I want you to read this documentation, get me an approach to actually concatenate stuff, and just drop your method in the group. Group में जाओ, read this documentation and tell me how can we concatenate stuff. There is a way, documentation में है, just read it out. I'll tell you. Till then, let me use some other operations, like you can do what? You can a dot sort, as I said. Let's put this in x. Let's print x.
you'll have this none. You would never be able to print this. Just tell me यहाँ पे मैं क्या mistake कर रहा हूँ. Can anyone tell me? कोई बता सकता है मैंने यहाँ पे क्या गलती किया? I hope थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कैसे वर्क करना है. थोड़ा थोड़ा. Let's go आगे. We can also have something like n dot min. So in this array you can get the minimum value. N dot max. You will have the maximum array. If I say np dot sum 2 plus 3 plus 1 6. So more or less you can get to that documentation. Documentation में सब चीज है. जो भी तुमको चाहिए to work on that, everything is there. Let's try to learn कि भैया हम इसको क्यों और कहाँ यूज करेंगे. पूछ सकते हो तुम लोग मेरे से? Obviously पूछना ही चाहिए. So let's build a program. Let's build a program to implement this code. Okay. Let's build a program to implement this code. ठीक है? What I said is let's have two values, actual values. We will have some actual values here. We would be having some predicted values. And let's try to do what? Let's try to find mean square error. तो इसका फॉर्मूला होता है 1 over n, total number of elements, n elements, n elements. Sigma I over 1 till n predicted, or you can say actual minus predicted, whatever you want to say. आगे पीछे कर लो क्योंकि स्क्वायर में होता है. But predicted corresponding to ith value minus actual corresponding to ith value, and you take a, oops, sorry, my mistake. You simply square this thing. Can we build this thing in NumPy? कोई मेरे को बता सकता है? Can we do it? Can we do it? Let me share my screen. Just tell me मेरा screen अगर visible हो तो just tell me. क्या मैं screen visible है? Yes, भैया. मेरा code editor visible है? Just tell me. Oh, it is not visible. Just a second. Okay. Let's do it. बहुत easy है. Formula, I guess clear था सबको? What I said is, let's have some actual values. Let's have some actual values. I say np dot array, and within that array, let's store some actual values 1, 2, 3. Let's say we have some predicted values. Np dot array, and I said let's have it 4, 5, 60. Let's do it. Now let's break this code here. Let's break this code. I'll tell you, बहुत easy है NumPy, and trust me when I say this. Let's build a code for this. Where is my window? Yes. Okay. So essentially this is your formula. So what you can say is कि भैया आप MSE लिखिए. It can be 1 divided by n. You multiply it. This is what? Sum, right? So भैया ऐसा कुछ होता होगा np dot sum. ऐसा कुछ होता ही होगा, ऑब्वियसली होता ही होगा. अब आप इसमें क्या कीजिए भैया, np डॉट आपने सम लिया. नाउ यू वांट दिस स्क्वायर, तो ऑब्वियसली np डॉट स्क्वायर कुछ होता होगा. यू कैन, ठीक है. एंड डू व्हाट भैया, प्रिडिक्टेड जो लिस्ट है, अभी मैंने देखा जब हम लिस्ट से लिस्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे या जो भी हम लिस्ट एरे ऑपरेशन करते हैं तो वो मैट्रिक्स में जैसे ऑपरेशन होता है कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई, ऐड हो गई, मल्टीप्लाई हो गई. इट वुड सिंपली गिव मी लाइक दैट. सो कैन वी कोड दिस डाउन हियर. इस पूरे फॉर्मूला को मैंने ऐसे लिख दिया.
So let's code this thing down, and this would be the last topic aaj ka. Okay, so let's say I have some values are actual. Let's try to get n. So let's say n is equals to len of actual. Let's print n. See, you get this n, right? आया सबका? आया सबका? Perfect. So let's code that formula. Formula में क्या था कि सबसे पहले MSE let's write it. सबसे बढ़िया आपने क्या किया? सबसे पहले 1 by n किया. You multiply this thing with what? np dot sum. Oh, my mistake. Sorry. np dot sum, and within that sum what you did? आपने हर एक का square लिया. np dot square, and what you did was आपने भैया क्या किया? predicted minus actual कर दिया. I guess यही किया मैंने. Let me open this thing अच्छे से. यही किया मैंने. फॉर्मूला यही कहता है. जस्ट ड्रॉप अ yes या no. फॉर्मूला यही कहता है. ओके, सिर्फ वंशिका ही रिस्पॉन्ड कर रही है, और लोग को नहीं समझ में आया क्या? आर्या, राशि, आदि, कनिष्का, शशांक. अरे सिंपल. प्रथम परफेक्ट. फॉर्मूला था, आई ब्रोक इट डाउन इनटू. ओके, कोई बात नहीं शशांक, कोई बात नहीं, आ गया. And you simply run this thing and you'll get the value. It is pretty easy. So this is your mean square error. You can also do it for line best fit line. You can also do it for least error. That is purely तुम्हारे ऊपर. Let me tell her. आया सबका इतना? I guess पूरा documentation तुम्हारे लिए है. जब मैं फाइल हैंडलिंग पढ़ाऊंगा तब we will discuss कि अगर मेरे पास कोई spreadsheet है, how we gonna do some calculation from the data which is in the spreadsheet. We learn how to plot this thing in some graph. I'll tell you अच्छे से. But all you have to do कि जो मैं documentation भेज रहा हूँ उसको पहले एक बार अपने से try up करो read करने का. Once that documentation is, थोड़ा आइडिया मिल ही जाएगा. ऑब्वियसली इतना भी तुम लोग वो नहीं हो, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का आइडिया मिल जाएगा. बिकॉज एवरीथिंग जो हम बुक्स में पढ़ते हैं या नेट पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, दैट इज मेड फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ. तो हम बुक पढ़ने से अच्छा लेट्स लर्न डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ते हैं. जो तुमको चाहिए इट इज इन द डॉक्यूमेंटेशन. फिर भी नहीं मिल रहा है, यू आर जस्ट वन गूगल अवे कि मेरे को ये एक्शन परफॉर्म करना. यू कैन गो टू सम GenAI मॉडल, BART, ChatGPT, Perplexity, your own. I want to do this operation. Can we have any NumPy function for it? And you will get, अगर होगा ऐसा तो you will get a function for that and you can simply implement it. हो जाएगा. Was it clear जितना आज मैंने पढ़ाया? Was it clear? कैसे हमने, जैसे वो वेव पैटर्न था, कैन आई एक्सपेक्ट कि यू कैन गो टू लिंक्डइन, build your approach and just tag me out? भैया उसमें मेरा एक एरर आ रहा था. वंशिका, मैं सबको ही बोला हूँ, ट्राई टू फिक्स योर एरर पहले अपने से. गो टू गूगल, कॉपी दैट एरर एंड लेट्स सी हाउ टू फिक्स इट. बिकॉज अल्टीमेटली वैसे तुम सीखोगी, मैं बता दूंगा, वो स्पून फीडिंग वाला आदत हो जाएगा फिर. आई डोंट वांट दैट. वाज इट क्लियर आज का सेशन? थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया बट ठीक है. वॉज इट क्लियर? वाइंड अप करें. कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई भी कंफ्यूजन किसी को? हाँ कनिष्का, जस्ट से व्हाट इज योर कंफ्यूजन? काइंड ऑफ टफ टुडे. शशांक, मेरे को इजी चीज़ें नहीं पसंद है. बिकॉज जब मैं इजी कराऊंगा तो तुम्हारा जो अप्रोच है, बिकॉज इजी चीज़ें से वी कैन नॉट बिल्ड समथिंग. इजी चीज़ें से यू कैन नॉट बिल्ड समथिंग. मैं बताया था पाइथन 1 आई विल कीप इट थोड़ा सा इजी, या धीरे धीरे आई विल लेवल अप. इजी चीजें तुमको यूट्यूब पे 1000 मिल जाएंगी यार. बस ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट द पर्सन जो स्क्रीन के इधर बैठा है. यू हैव टू ट्रस्ट दैट पर्सन थोड़ा सा.
कि अगर ठीक है तुमको कुछ बीच में बोलना जस्ट वेट करो कि क्या वो अपने कंप्लीट होने के बाद उसको वो टॉपिक कवर कर रहा है। लाइक वंशिका वाज बीच में थोड़ा सा बताया थी कि भैया आप ये मतलब कि वेट करो, लेट मी टेल। एक फ्लो मेरा बना रहता है दिमाग में कि हमको इसके बाद ये टॉपिक टच करना है। ट्रस्ट मी विद दैट, मैं वो टॉपिक टच करूंगा। फिर भी इन केस को टॉपिक नहीं टच किया यू कैन जस्ट टाइप इट आउट इन द चैट सेक्शन। कनिष्का आई गेस तुम्हारे लिए फर्स्ट सेशन था ना? अरे नहीं, डाउट नहीं है कोई। मैं बस कह रही थी हाँ वाइंड अप करते हैं। अच्छा ज़्यादा लेट हो गया, चलो एनीवेज। Was it clear? Nice section which I was procrastinating since long. Perfect. मैं भी कर रहा था 11th में। मेरे को भी टॉपिक नहीं समझ में आता था, बट ठीक है हमको प्रोजेक्ट बनाना था, मैं जल्दी से सीखा, आई बिल्ड द प्रोजेक्ट। बिकॉज हम जो भी मशीन लर्निंग मॉडल यूज करेंगे वी वुड बी रेयरली वर्किंग विथ एरे ऑपरेशन। हम सीधे numpy के साथ खेलेंगे। विल प्ले विथ मैटप्लॉटलिब, विल प्ले विथ pandas, विल प्ले विथ फाइल हैंडलिंग। सो बेसिक मैंने पाइथन पढ़ाया, देन पाइथन 102 बिकॉज यहाँ जो हम सीखेंगे मोर लेस जब हमको, बिकॉज मशीन लर्निंग में क्या होता है तुम लोग डेटा देते हो और वो डेटा मोर लेस गूगल फॉर्म अगर तुमने बनाया तो स्प्रेडशीट में होगा या CSV फाइल में होगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में होगा, PDF में हो सकता है। सो वी वुड लर्न फाइल हैंडलिंग। मैं फाइल हैंडलिंग पढ़ाना नहीं चाहता था बिकॉज उतना टाइम था नहीं मेरे पास, बट ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट टू नो कि कैसे वी गेट द डेटा फ्रॉम द फाइल। और फिर एक बार डेटा मिल गया तो नाउ यू कैन डू जैसे हम नॉर्मल ऑपरेशंस करते हैं पाइथन में। तो योर होमवर्क इज आज का, हेड ओवर टू योर ID, build that approach for printing the wave pattern, build that approach for printing the wave pattern. And till then do we have any questions? Yes, we have some questions for you. Let me share it with you. You can write a program to perform some matrix operation. अपने से matrix choose करो, 1 dimension, sorry 2 dimension, 3 dimension, अपने हिसाब से तुम choose करो, ठीक है? And try to perform some operation like transpose. You can perform, you can get diagonals, you can perform transpose operation, you can get rank of the matrix, anything. Everything is in that function. Dot T for transpose, dot diagonal for getting the diagonal elements, dot rank for getting the rank. You can find determinant, everything. Because more or less हम जब when we'll try to learn neural networks, ठीक है, तो वहां पे we would be doing 80% 90% matrix multiplication. We will be finding adjacents. We would be doing matrix multiplication. वहां पे हम इतना डॉट मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, सीधे we'll pass it in numpy, we'll simply multiply it, we'll get the value. So this is what numpy and to-do list was essentially. I hope तुम लोगों को सब क्लियर होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट है you can ask me, I'm free for the doubt. Else let's wind up. काफी ज्यादा हो गया, आज 2 घंटे टच होने जा रहा है फिर से आज। किसी को कोई क्वेरी? किसी को कोई क्वेरी? ड्रॉप पर येस और ड्रॉप पर नो। ऐसे खाली स्क्रीन पे मैं क्या समझूं? नो, शशांक सेड नो, कनिष्का नो। Was it crystal clear? crystal clear नहीं भी होगा तो you can actually go out. मैं PPT भेज देता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग है, you can just check out to YouTube. थोड़ा सा टाइम देना, अपलोड होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, but if it was clear, should we wind up? कोई क्वेरी नहीं है किसी को? Are we clear about the assignment? Perfect, perfect, perfect. So until then, we will have a class tomorrow इसी टाइम पे। We would be learning, कल हम क्या सीखेंगे? कल हम पांडा सीखेंगे, मैटप्लॉट में देखना पड़ेगा, या तो पांडास होगा या मैटप्लॉटलिब होगा। So we learn about that. मैंने रिसोर्सेज में I have a suggestion। हाँ आ रहा, भैया जैसे आप डेली 4 दिन क्लास ले रहे हो फिर 3 दिन फ्री दे रहे हो, इसकी जगह हम लोग ऑल्टरनेट क्लासेस कर सकते हैं क्या? 1 दिन क्लास फिर छुट्टी फिर क्लास। अच्छा मैं पोल डालता हूँ। सी अल्टीमेटली सारा देखो 4 बजे तक मेरा ऑफिस होता है, जल्दी से मैं खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, लैपटॉप सेट करता हूँ,
मैं जो 9 बजे से नहीं बैठा टाइम का मैं जो 9 प्रॉब्लम साढ़े 9 नहीं बजे है। से बैठा हुआ हूँ, अभी तक बैठा हुआ हूँ। नहीं टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जैसे आज आपने नया टॉपिक सिखाया तो अब जैसे इसके फंक्शंस और इसको रीड करना अप्लाई करना, अभी तो क्योंकि इंस्टॉल भी नहीं किया है मैंने ये, तो अभी जैसे इसको अप्लाई करने के लिए और एक्सप्लोर करने के हाँ, लिए 1 दिन मिल हाँ, जाएगा। हाँ। टाइम उतना ही जाएगा 4 दिन 3 दिन का, पर ऑल्टरनेट हो जाएगा। शुड वी हैव इट अल्टरनेट? अच्छा ठीक है, लेट मी ड्रॉप अ पोल। ठीक है यार, लेट मी ड्रॉप अ पोल। बिकॉज़ सी दिक्कत क्या है, वी हैव पीपल फ्रॉम कॉलेज बैकग्राउंड, आई हैव पीपल फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड, आई हैव पीपल फ्रॉम एमटेक 5th सेमेस्टर, आई हैव पीपल फ्रॉम बीबीए, राइट? हमारे यूनिवर्सिटी के भी, हमारे यूनिवर्सिटी के बाहर के भी। तो मेरे को एक पूरा लाइक मेजॉरिटी को देना पड़ेगा। सब ऑल्टरनेट बोले, ठीक है, लेट मी ड्रॉप इट आउट। मैं एक पोल डाल देता हूँ, ठीक है? मैं पोल डाल देता हूँ, लेट्स सी व्हाट द रिस्पॉन्सेज। अगर होगा तो मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं। मैं पोल डाल देता हूँ इस मीटिंग के बाद। कोई क्वेरी नहीं है तो शुड वी वाइंड अप? थोड़ा सा आराम दिया जाए मेरे को भी। सारा जो जितना मैंने कराया बताया सब क्लियर था। एक चीज तुमने सीखा कि हाउ वी कैन ऑब्जर्व एंड बिल्ड एन अप्रोच। कोई प्रॉब्लम टफ नहीं होता है, इट इज जस्ट कि तुमने ऑब्जर्व नहीं किया कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं एसेंशियली, राइट? सो लेट्स वाइंड अप टुडेज सेशन। आई होप सबको क्लियर हो। Let's meet you all in next session with some another topic. Until then,